हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शौकीन रू। आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। बताओ यार, कमेंट भी करो। व्लॉगिंग कर रहे हो? हाँ यार, मतलब नॉर्मल व्लॉग जैसे मैं बातें करता हूँ, इनसे कुछ नया टॉपिक आज कुछ डिफरेंट करेगा? क्या करना है डिफरेंट? डिफरेंट मतलब मैं तेरे से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछूंगी। Okay. मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस Okay. नॉट रिलेटेड टू यू ओनली, Okay. बट चीजें जो आजकल चल रही हैं मार्केट में, और Okay. तू उनके आंसर्स दे। ठीक है, काइंड ऑफ रैपिड फायर। लुक्स इंटरेस्टिंग है कि नहीं? ऑलराइट देन, आज व्लॉग नहीं, कोई टॉपिक पे नहीं, क्या पता ये तो करंट अफेयर्स या कोई करंट टॉपिक पे बात हो जाए। क्वेश्चन जो आने वाले हैं, मजा आएगा। बड़े सारे क्वेश्चंस है मेरे पास। बड़े सारे क्वेश्चंस है, सुन रहे हो गाइस? बढ़िया है। रेडी? हाँ जी, चलो। ठीक है। आप भी लोग रेडी? गुड, लेट्स गो। आर यू रियली लिविंग और जस्ट एग्जिस्टिंग? लिविंग, डेफिनेटली लिविंग। आगे भी तो बोल। Oh, अच्छा, थोड़ा सा। Okay, great. So obviously I'm living, I'm doing my work and I'm doing my thing that I like to do, which is like to connect with people. आप लोगों के साथ जो connect करता हूँ, तो definitely I'm living. Okay. Next, burnout is the new normal. ठीक है? But Okay. Should it be? It should not be. Burnout should not be the new normal because I understand like people are so much into work. We need to, work ourselves maybe 12 hours a day, 14 hours. It's not required. If you burn out, अगर आप अपने आप को इतना burn out कर दोगे, mental peace कहाँ है? तो मेरे हिसाब से it's not recommended. जितना है उतने हिसाब से काम करो and just move on then. Very nice. मेरा next question है. Okay. We talk about mental health. Yeah, we do. But are we actually healing? Well, that totally depends. I would say if we talk about mental health, if you face some challenge, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको डिस्कस करके उस चीज का सॉल्व निकाल सकते हो, then you are healing. And definitely there are so many mental problems और mental health के बारे में जो बातें होती हैं, कॉर्पोरेट में भी काफी सारे सेशंस होते हैं because there is so much pressure of work, not only work, normal life as well. तो definitely टेक सम टाइम आउट फॉर योर ओन सेल्फ। जो अगर मेरी जो वीडियो थी, जो लास्ट वीडियो लोगों ने नहीं देखी है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, टेक आउट टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, प्लीज जाके वो वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। सो फॉर दैट रीजन आई वुड से हीलिंग इज गुड इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। बहुत ही बढ़िया। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो हु यू आर विदाउट योर जॉब? Yes, definitely. See, I would say I do know myself apart from my job. Definitely, वो एक चीज है, that's just a part of my life. That's not actually my life. And if we talk about myself, I do know myself. Like जिस तरीके से मैं I do my living in terms of, अगर let's say for example there was a phase जब job नहीं थी, so I was able to discover myself more. I was able to channelize that in terms of to understand what is something that I really like to do, which I'm doing right now, and I've been doing that continuing from last maybe I would say 2 to 3 years. So definitely I would say I know myself even without the job. चलो, वेरी नाइस। Great. नेक्स्ट, ये थोड़े से जो सोशल ट्रेंड्स या कल्चर आजकल चल रहे हैं, उनके नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, great. ओके, टेल मी, व्हाई आर यंग पीपल रिजेक्टिंग मैरिज? Gen Z, yeah. Okay, great. Okay, थोड़ा मजाक हो गया, ठीक है। So young people are rejecting marriage because they don't believe in relationships. यार देखो, रिलेशनशिप ना, इट्स जस्ट नॉट अबाउट आई लव यू बोल दिया, आई लव यू टू बोल दिया, बस वहां से सब राजी खुशी खुशल मंगल नहीं। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ कमिटमेंट, लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, which is becoming ancient day by day. Because now younger people, they're more like, hookups and just move on. Like that's just general I'm talking about, like my point of view. आपका अलग हो सकता है, but then again what I believe is that's what the basic normality for them is, that just not to get into that relationship or seriousness or to jump into marriage or have some kind of commitment. They are like, we just free birds. That's why young people at this point of time, they're okay not to have that kind of a baggage with them, अपने पूरे टाइम के लिए, अपने पूरे सालों साल के लिए with one person itself. Very nice. Okay, next question. Quiet quitting, is it rebellion or wisdom? Quiet quitting, rebellious or wisdom? Wisdom. I would say both.
And now it depends on the situations as well. Sometime it is a very good sign of wisdom. For example, मान लो कि आप इतना एक ग्रुप में बैठे हो और बहुत सारी बातें चल रही हैं और इधर उधर से भी ओवरलैपिंग हो रही है. At that point of time, even if you want to make your point, nobody's going to listen to that. Nobody's going to listen to that. Why? Because they are so much into their own thoughts and they are like एक के ऊपर बोल रहे हैं, फायदा नहीं है. तो उसमें विजडम दिखाओ, स्टे क्वाइट टिल द टाइम. कहते हैं कि एक लेवल आए जहां पे आप उस चीज को, अपना पॉइंट को रख सको. व्हाई? बिकॉज योर पॉइंट मैटर्स. एंड इफ यू वांट टू मेक श्योर कि वो आपके पॉइंट की वैल्यू दिखे, देन यू नीड टू मेक श्योर दैट इट्स बीन हर्ड क्लियरली. समटाइम रिबेलियस, यस. आप मान लो कभी कभार आप कोई आर्ग्यूमेंट में बैठे हो, ठीक है, आपको पता है कि भाई सामने वाला मान ही नहीं रहा है, लाइक दैट पर्सन ना मानता ही नहीं, उसको कुछ है ही नहीं. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू हैव योर ओन पीस कि भाई रहने दो यार, क्या ही रिबेल करें इस चीज को भी लेके, जस्ट बी साइलेंट. अब क्या होगा, अब आर्गुमेंट हो रहा है, राइट, अब एकदम से हम साइलेंट हो गए. नाउ दैट पर्सन विल बी मोर लाइक, अरे बात ही नहीं कर रहा, अरे अब तो बोल. इट विल बी मोर लाइक, भाई मेरा ये साइलेंट ट्रीटमेंट तेरे लिए है बिकॉज मेरे को ये आर्गुमेंट करनी है. सो आई बिलीव डिपेंड्स ऑन बोथ सिचुएशंस. Okay, great. Next question. Okay. Everyone is manifesting, Right. but is it working? That's a very good question. Nowadays, people are into manifesting too much, तो वो it is working. Why it working? Because if you are already working towards something, you manifest when you are in a process of reaching that particular point. मतलब कि अगर आप, let's say मैंने बोला यार मेरे को नई गाड़ी खरीदनी है, तो यार मेरे को उस हिसाब से देखना पड़ेगा. तो मैं जो वो सोच रहा हूं, मैं इसलिए सोच रहा हूं बिकॉज मैं ऑलरेडी उसकी टुवर्ड्स वर्क कर रहा हूं. ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स इज जस्ट टू हेल्प मी विद दैट मैनिफेस्टेशन. हार्ड वर्क मैं अपना कर रहा हूं, तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, और वो हार्ड वर्क कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन इज द पार्ट ऑफ इट. Great. Next, is social media making us narcissistic or just lonely? I would say more lonely because at one given point of time, आई अंडरस्टैंड कि भाई सोशल मीडिया के पास आप बहुत ज्यादा उससे एडिक्ट हो जाते हो, राइट, ये ऐप वो ऐप, उसमें इधर उधर. बट देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप उसमें इतना एनग्रोस्ड हो जाते हो दैट यू बिकम लोनली. यू डिस्कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, यू डोंट हैव टाइम. वो इम्पैक्ट करता. तो मेरे हिसाब से आई वुड से लोनली. ज्यादा मत यूज करो, कम, लाइक उतना करो जितना जरूरी है. एडिक्शन नहीं होनी चाहिए. Okay, nice. Yeah. Why are we so obsessed with productivity? Obsessed with productivity. अब देखो ये तो कॉर्पोरेट वाली बात आ गई, कॉर्पोरेट मजदूरी वाली बात आ गई. अब क्या ना, जीन्स ऐसे हैं कि अगर मैं बोलूं, लाइक फ्रॉम बिफोर 80s 90s, दैट जनरेशन, हमारे अंदर वो इनबिल्ट सा एक चीज है कि हमने पापा को देखा है, दादा को देखा है कि भाई वो काम करते हैं, सारी चीजें, तो वो हम में ना एक तरीके से फिट है कि ये काम करना है. वो प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लाइफ भी चलता है कि भाई मैंने इतना काम कर लिया, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि यार कुछ तो प्रोडक्टिविटी कर रही है. अब मान लो कि 5 दिन काम किया, 6-7वें दिन अपने आराम करते, तो ये लगता है कि वो प्रोडक्टिविटी का दैट्स द काइंड ऑफ रिजल्ट कि वो हमें मिल रहा है. सो दैट्स वाई वी आर रनिंग टूवर्ड्स कि यार अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में कि यार ये जो टास्क है इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद शांति से बैठेंगे. बैठने का वो हमने कहते हैं कि एक पर्क कि भाई ये हमारे पर्क्स हैं कि भाई हमने प्रोडक्टिविटी दिखा दी, सब कुछ कर दिया, काम वाम कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं. तो वो थोड़ा सा ना नेचर है उस चीज पे. ओके, लेट्स मूव ऑन. तो नेक्स्ट कुछ ह्यूमन बिहेवियर, फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ओके. क्वेश्चन है, व्हाई डू ह्यूमंस सेल्फ साबोटाज देयर हैप्पीनेस? सेल्फ साबोटाज देयर हैप्पीनेस. ना देखो, इट टोटली डिपेंड्स. आई वुड से कोई इंटेंशनली तो नहीं करता है, ठीक है. इट कुड हैपन बाय मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड से कि भाई अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, एक गलती से जो खुशी है वो दुख में बदल जाता है. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग. उसका एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं. बट देन अगेन आई बिलीव इंटेंशनली कोई करना नहीं चाहता उस चीज को कि भाई अपनी खुद की खुशी को ही तुम यार सैडनेस में बदल दो. सो देयर आर मिस्टेक्स इन लाइफ जिससे होता है, बट वो हमें सीख देता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज नहीं करनी. सो आई वुड से दैट्स व्हाट आई विल सम इट अप. या डेफिनेटली. Okay, next question. It's an interesting one. Okay. The illusion of control in a chaotic world.
Illusion of a control in a chaotic world. So, is it like more like what is it about, or like illusion of control? Everyone has that illusion that they are in control. Correct. in this chaotic world. Correct. वो कहते हैं हर कोई कहता है मैं राजा मैं राजा मैं राजा, वही वाली चीज है। देखो अब क्या है, 10 लोगों के बीच में बंदे बैठे हैं, ठीक है, इतनी भसड़ चल रही, सब कुछ चल रही, पर सबको ये लगता है कि मैं ही राजा हूं। एंड दैट्स द इल्यूजन। मैं वर्ल्ड में इतना क्योस चल रहा है, बट उसमें भी लगता है अरे मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं राजा हूं, अरे मैं करके दिखाता हूं यार, मैं मेरे से हो सकता है। तो ये तो सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप एक क्योटिक वर्ल्ड के अंदर हो, आप राजा तो हो ही नहीं सकते। आपको उस वर्ल्ड का ऐसा पार्ट बनना है कि आप उसको क्योस से निकाल सको। आप उसमें ध्यान दो। आपने सोचा मैं राजा हूं और बस मैं ही मैं हूं, तो वो और वो क्योटिकनेस को और बढ़ाएगा उसमें। Okay, great. Next, what if your biggest enemy is your own mind? Biggest enemy is your own mind. It's very difficult then तो। उसके बाद तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं। जो ओवर थिंकर होते हैं, जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिस्ट, इट बिकम्स एट मतलब नो ऑफेंस, मेरी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इतना सोचते हैं ना अपने माइंड के साथ कि भाई उनको हर एक चीज में क्वेश्चन और डाउट करना शुरू हो जाते हैं। Then it becomes very difficult for them to even drink glass of water. They will be like, ये कौन सा वाटर है, कैसा वाटर है, कितना, ये कितना TDS, वो कितना। तो it becomes very difficult because आप ना वो उस चीज को प्रिपेयर नहीं कर पाते। कभी आपको लगता है यार ये माइंड को थोड़ा शट ऑफ करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, पर वो कर नहीं पाते। और अगर वही चीज नहीं कर पाओगे, बर्नआउट भी होगे, चीजें भी डिफिकल्ट होंगी, रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा कि जो तुम्हें प्रोजेक्ट दिया उसमें तुम मास्टर बन जाओगे, बट कब तक? क्योंकि वो माइंड आपका कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, थॉट्स भी वही चल रहे हैं, काम में ये वो, खत्म हो जाता है इंसान। Okay, great. Next, again, very interesting question. Okay. Do we really have a free will, or are we just programmed? We don't have a free will, I would say. कुछ हद तक कह सकते हो फ्री विल है, बट मैक्सिमम प्रोग्राम्ड है, बिकॉज वी आर जस्ट प्रोग्राम टू डू दिस। सिंपल सी चीज बताता हूँ, मेजोरिटी ऑफ पीपल दे आर लाइक, हमें पैदा हुए हैं, बड़े होंगे, कॉलेज जाएंगे, काम करेंगे, उसके बाद विल बी जस्ट मोर लाइक शादी करेंगे, बच्चे करेंगे। इट्स ऑल प्रोग्रामिंग। यहां पे आपका फ्री विल है नहीं, बिकॉज प्रेशर सोसाइटी का, प्रेशर फैमिली का इतना ज्यादा हो जाता है। 10 में से 1 या 2 या 3 लोग हो सकते हैं जो शायद इससे थोड़ा सा परे जाएं, बट देन अगेन फ्री विल इतना ज्यादा है नहीं, बिकॉज फ्री विल इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली टू कम। एज यू नो, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। फ्री विल इज जस्ट अ मिथ, इट टोटली डिपेंड्स। Okay, great. So I have a lot of more questions, but I just want to wrap it up with one last question because otherwise it will be too long. Too long, yeah. Okay. Yeah. Last question. Correct. What do you think? Why are people more angry in 2025? देखो मैं इसका ना थोड़ा सा वैसा सा आंसर दूंगा, ताकि मैं 2025 थोड़ा सा वैसा रहा है यूनिवर्स का भी मैं बोलूं, तो मैं थोड़ा ज्यादा उसमें नहीं बोलूंगा नेगेटिव में, बिकॉज सी यूनिवर्स इज लिसनिंग, यू नो, यू पीपल आर लिसनिंग एज वेल। एंग्री इसलिए बिकॉज पीपल आर काइंड ऑफ स्केर्ड, राइट? क्योंकि अभी क्या हो गया ना, एस्ट्रोलॉजी और आपकी ये सारी चीजों पे लोग काफी अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो लोगों को अब इंफॉर्मेशन है कि यार ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, राहु केतु, ये सारी चीजें पहले भी होती थी, पर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब जब अवेयरनेस इतनी हो गई है ना, तो बहुत ज्यादा वो एक आई वुड से देयर इज अ फियर अराउंड इट। एंगर वो उसमें टर्न हो गया, बिकॉज चीजें जो हो रही हैं आज की डेट में लाइफ में, किसी और की लाइफ में या अराउंड द वर्ल्ड इटसेल्फ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसको ना एक तरीके से कहते हैं कि उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है, बिकॉज हमने पैंडेमिक देखा, हमने पता नहीं क्या देखा, एंड आफ्टर दैट अगेन 1 year विच इज लिटिल नॉट ऑन अ ब्राइटर साइड, आई वुड से, जो लोग को लग रहा है, तो वो जो उनका फियर है वो एंगर में टर्न हो रहा है। तो दैट्स हाउ आई एम गोना सम इट अप, है ना यूनिवर्स, बढ़िया, ठीक है, ऑलराइट। और एक और चीज, लाइक यू नो, आई जस्ट वांट टू नो, ये तो मेरे, दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ जितने भी क्वेश्चन में से पूछे, प्लीज डू लेट मी नो आप लोग के क्या आंसर्स होते हैं इसमें, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे थे, है ना? तो बिल्कुल वीडियोस में जाओ, कमेंट करो उस पर, अगर मेरे वाले से एग्री कर रहे हो तो वो बताओ, नहीं तो आप अपना बताओ कि आपके हिसाब से क्या सही है, ठीक है? तो आई होप आप लोग को ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, बिकॉज मैंने आई थॉट के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा
सामने से ऑब्वियसली एक वो भी सजेशन भी आया कि एक क्वेश्चन करते हैं व्हाई टू व्लॉग, बिकॉज ये भी एक तरीका है. एंड एज ऑलवेज प्लीज डू लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं. कमेंट सेक्शंस आर ओपन, एज मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. जो भी आप चीजें बोलोगे मैं उसी हिसाब से उस चीजों को आपके सामने रख पाऊंगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद यू. सो मेक श्योर you do subscribe to my channel. Go watch my videos. There are n number of videos on my channel. कोई भी चीज को लेके अगर आपको कुछ फन करना है तो मेरी डांस की वीडियोस है, मेरी लिपसिंग वीडियो, बहुत सारा कुछ कंटेंट है कि आपको अच्छा लगेगा. ये स्पेसिफिकली इसलिए है, एक जरिया है टू बी कनेक्टेड विद यू पीपल, सो दैट अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो कोई भी एक टॉपिक पे, एंड दैट्स लाइक अ सक्सेस फॉर मी, राइट. सो प्लीज डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोस, कमेंट करके बताओ कोई भी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन या कोई टॉपिक, ताकि मैं उस चीज को आपके सामने रख सकूं और उसी तरीके से हम थोड़ी बातें कर सकें. ठीक है. टिल देन शौकीन रूह आप लोग के साथ. टेक केयर. बाय बाय. अब एक छोटा